Hey guys, if you're looking at a chemistry paper, तो आप क्या देखते हो कि एक गारंटेड क्वेश्चन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से आएगा। तो ट्रिक सिर्फ ये नहीं है कि हमें इक्वेशन पता है, हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको इम्प्लीमेंटेशन उस इक्वेशन की आनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन कहाँ यूज करनी है। अगर आपको डेंसिटी दे रखी है, या आपको मास पर्सन दे रखा है, या आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, तो आपको कौन सी वाली इक्वेशन यूज कर रही है। तो हम लोग एक वॉक थ्रू कर रहे हैं थ्रू अ लेवल 1 टू लेवल 10 चैलेंज टुडे। और यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक बॉइलिंग पॉइंट एंड एंडिंग विद कॉम्प्लेक्स मोलर मास डिटर्मिनेशन क्वेश्चंस, एंड आई होप यू आर रेडी। Now, before doing the first question, एक quick सी recap ले लेते हैं कि what all is happening or what all we have studied in our last class. Okay, so अब आपको ये पता है कि जब भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो what is happening to all the कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग वेपर प्रेशर कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर में what happens, it is going to decrease. Why it is decreasing? Because we studied कि solute particles जो है वो occupy कर लेते हैं surface को, और blocking हो जाती है, और solvent escape नहीं कर सकता. What happens to the boiling point? Boiling point is going to increase. Why it is increasing? Because हमें ज़्यादा heat की ज़रूरत है to reach the atmospheric pressure. ठीक है? फिर उसके बाद what happens to the freezing point? What happens to the freezing point? The freezing point is also going to decrease. Why? Because यहाँ पे जो solute particles हैं वो disrupt कर देते हैं the organized crystal lattice. So all this we have done. Now I am going to base my class today on a few questions from Reol's law and colligative properties. Let's move on to the first question. At 300 Kelvin, the vapor pressure of an ideal solution containing 1 mole of A and 3 moles of B is 550 mm of mercury. At the same temperature, if 1 mole of B is added to the solution, the vapor pressure of the solution increases by 10 mm of mercury. Calculate the vapor pressure of A and B in their pure states. ठीक है? So अब total pressure क्या हो जाता है? P that will be equal to PA naught into XA. This is the formula which we are using, plus PB naught into XB. ठीक है? So first case में P1 हमें क्या दे रखा है? 550. That is what is given to us in the question. ठीक है? P1 हमें ये दे रखा है, और XA क्या आ जाएगा? XA will be equal to 1 upon 1 mole of A and 3 moles of B. Right? This is what is given. 1 mole of A and 3 moles of B. So 1 upon 3 plus 1, which is equal to 4. और XB क्या हो जाएगा? XB will be equal to 3 by 4. तो ये हमारे पास आ गया XA और XB. Let's put the values. 550, which is equal to PA naught into XA, which is 1 by 4, plus PB naught into 3 by 4. ठीक है? This is what we have. Or we can say, इसको solve करने पे, that PA naught plus 3PB naught, that is equal to 2200. So this is what we have been given. अब second case में वो क्या कर रहे हैं कि if 1 mole of B is added to the solution, the vapor pressure of the solution increases by 10 mm. So now what we have to do over here is, तो प्रेशर P2 क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 550 प्लस 10, है ना? तो ये आ गया हमारे पास 560. अब 1 मोल ऑफ B जो है वो ऐड हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने हैं? 1. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अब इन दिस केस क्या हो गए?
3 ऑलरेडी थे, 1 और ऐड कर दिया तो ये हो गए 4. सो एक्स ए अब हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स ए विल बी इक्वल टू 1/5 एंड एक्स बी विल बी इक्वल टू 4/5. Let's again put the values in the formula. 560, which is equal to PA naught into XA, which is 1/5, plus PB naught, which is equal to into 4/5 into XP. Okay, now on solving this, ये हमारे पास आ जाता है 2800, which is equal to PA naught plus 4 PB naught. ठीक है. सो पिछले वाले में हमारे पास फर्स्ट केस में इक्वेशन क्या आई थी, ये आई थी. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, और सेकंड केस में हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, ये आ रही है. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम लोग करें, ये दोनों आपके पास इक्वेशन 1 क्या आ गई. लेट्स राइट डाउन इक्वेशन 1 ओवर हियर. इट इज 2200, which is equal to PA naught plus 3 PB naught. So this is equation 1. So आप equation 1 और equation 2 से I'm sure you will be able to easily calculate now. So calculation पे जो PA naught की हमारी value आती है, PA naught is equal to 400 and PB naught will be equal to 600. ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, एक दो बारी पहले भी नीट में आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड. अगर आपने नहीं समझा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. फिर उसके बाद लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट if the vapor pressure is 2% below the vapor pressure of pure water. अब यहाँ पे आपको अगर PS जो है that is given as how much? PS is equal to 98% of P naught, क्योंकि 2% है ना, तो 98% of P naught. So which will be equal to 98 divided by 100 आ गया हमारे पास 0.98 P naught. ओके. अब हमें पता है कि P naught minus PS upon P naught that is equal to XB or number of moles of B upon total number of moles. ठीक है. और we can say that P naught, ये जो P naught minus PS है, that is equal to what? That is equal to M of solute upon molar mass of solute into molar mass of the solvent upon weight of the solvent. Right? अब मोलैलिटी क्या हो गई? If you're talking of molality, molality is equal to weight of the solute. I'm taking WB as weight of the solute into 1000 upon molar mass of the solute into weight of the solvent. This is what molality is. ठीक है? And this will be equal to P naught minus PS upon P naught की वैल्यू क्या आ रही है? Weight of the solute upon molar mass of the solvent into molar mass of the solvent upon weight of the solvent. ठीक है? So this can be, इसको substitute करते हैं यहाँ पे P naught minus PS into 1000 upon PS into molar mass of the solvent. So ये हमारे पास आ गया. ठीक है. अब लेट्स पुट द वैल्यूज. तो वैल्यूज आपके पास क्या है? P नॉट, PS की वैल्यू है 0.98 P नॉट अपॉन
0.98 P naught. Molar mass of the solvent is 18 into 1000, which on solving we get over here 1.133. सो आपको मोलालिटी फाइंड करनी है, तो मोलालिटी को आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला जो है, मोलालिटी इज इक्वल टू, अगर रिलेशनशिप आप देख रहे हो तो मोलालिटी और रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर के बीच में ये रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। सो मोलालिटी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस इंटू 1000 अपॉन पी एस इंटू एम ए। तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द मोलालिटी, राइट। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. A very small amount of a non-volatile solute which is not dissociated is dissolved in 56.8 centimeter cube of benzene with a अब यहाँ पे density दे दी है 0.889 centimeter cube. At room temperature, vapor pressure of the solution is 98.88 mm of mercury, while that of benzene is 100 mm of mercury. Find the molality of the solution if the freezing temperature of the solution is 73. ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर आपको कितना दिया है, इट इज 0.73, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, इट इज 0.73 डिग्री लोअर देन दैट ऑफ बेंजीन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एफ, राइट. सो लेट्स सी, सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, उन्होंने हमें पी नॉट दिया हुआ है 100 mm और पीएस दिया हुआ है 98.88 mm, राइट. द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट Ma C6H6 है, तो बेंजीन का मोलर मास आ गया हमारे पास 78. अब हमें पता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस दैट इज इक्वल टू WB अपॉन MB into, सॉरी, MA अपॉन WA, ठीक है. और ऑलरेडी हमने रिलेशनशिप जो है उसको हम कर चुके हैं डिराइव, तो डायरेक्ट हम रिलेशनशिप यहाँ पे लगा लेते हैं. तो मोलालिटी क्या आ जाएगा, मोलालिटी दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस इंटू 1000 अपॉन पी एस इंटू WA, ठीक है. तो वैल्यूज पुट करो, पी नॉट की वैल्यू हमें दी है 100 माइनस 98.8 इंटू 1000 अपॉन 98.8 into the into the क्या कहते हैं उसको, मोलर मास ऑफ द दिस थिंग विच इज 78. तो ये WA की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं MA इंटू 78. तो मोलालिटी आ जाती है कैलकुलेट करने पे 0.1452. व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन, डेल्टा TF भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.73, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी. मोलालिटी आपने कैलकुलेट कर ली, तो KF क्या आ गया, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन मोलालिटी विच इज इक्वल टू 0.73 upon 0.1452, which becomes equal to 5.027 Kelvin kg per mole, ठीक है. या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 5.027 केल्विन पर मोलालिटी.
सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज. तो इसमें दोनों क्वेश्चंस में हमने सेम एक्सप्रेशन यूज किया है, ये वाला. All right, let's move on to the next question. Question number 4. A solution contains 7.31 grams of urea and 50 grams of water. When air was bubbled through the solution and then successively through water and concentrated sulfuric acid, the bulb containing pure water lost 0.87 grams, while the gain in weight of 2.036 grams were noted for the sulfuric acid bulb. What is the mass of 1 mole of urea? देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है बट बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है. तो हमें डब्ल्यू बी दिया हुआ है विच इज 7.31. ठीक है. फिर हमें डब्ल्यू ए दिया हुआ है मास ऑफ वाटर विच इज 50 ग्राम्स. ठीक है. नाउ ओवर हियर व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर एम ए दैट इज इक्वल टू 18. ये भी हमें दे रखा है. राइट. नाउ लॉस इन मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है. Loss in mass of the solvent. So mass जो है that is equal to 0.087. तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0.087 जो है that is directly proportional to P naught minus PS, lowering in vapor pressure. है ना. अब gain in mass of H2SO4, gain in mass of H2SO4 ये हमें कितना दे रखा है 2.036. So this is directly proportional to P naught. ओके. अब दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा. P naught अपॉन P naught माइनस पी एस दैट इज इक्वल टू P naught की वैल्यू हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. सो इट विल बी 2.036 divided by P naught minus PS. So P naught minus PS is directly proportional to 0.087. राइट. ये हमारे पास आ गया. नाउ अगर हम लोग दोनों साइड को मतलब दोनों साइड से हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब हमारे पास क्या आता है. सो लेट्स जस्ट सी. हमारे पास आ गया P naught अपॉन P naught minus PS minus 1 that is equal to 2.036 upon 0.087 माइनस 1. तो दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को हमको माइनस कर दिया है 1 को. राइट. सो नाउ व्हाट डू वी हैव ओवर हियर. वी विल हैव PS upon P naught minus PS that is equal to 2.036 minus 0.087 divided by 0.087. So this becomes equal to 1.94 1.949 divided by 0.087. Okay. Now we know that P naught minus PS upon PS that is equal to WB upon MB into MA into WA. मोलर मास ऑफ द सोल्यूट हमको कैलकुलेट करना है. मोलर मास ऑफ द सोल्यूट क्या आ जाएगा. MB विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट ही कैलकुलेट करना है ना हमने. यस. सो दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट
एक सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ यूरिया? ओके ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपके पास आ गया, वी हैव टू कैलकुलेट डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी आ जाएगा एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। एक बारी क्वेश्चन देखें, व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट? वाइल द गेन इन वेट 1 मोल ऑफ, अच्छा, मोलर मास कैलकुलेट करना है। सो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजेस करनी पड़ेंगे। ओके, सो वी हैव ओवर हियर molar mass of the solute WB into MA upon WA into PS upon P naught minus PS. So ये आ गया आपके पास, let's put the value 7.31 into 18 upon 50 और PS आ रहा है आपके पास 1.949 into 1.949 into P naught minus PS is 0.087. On calculating ये हमारे पास आ गया 58.9. So this is going to be your answer. Got it? Let's move on to the next question then. Calculate the amount of ice that will separate out upon cooling a solution containing 50 grams of ethylene glycol in 200 grams of water. Okay. To minus 9.3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे अगेन हमको WB कितना दिया है? 50 ग्राम्स, ठीक है। और मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का MB विल बी इक्वल टू 62। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास होता है 62। डेल्टा TF हमको क्या आ जाएगा? 0 माइनस माइनस 9.3, ठीक है। सो दैट कम्स टू 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ KF कितना दिया है? KF भी हमें दे रखा है, विच इज 1.86। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू व्हाट? KF इंटू मोलालिटी, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, राइट। लेट्स पुट द वैल्यूज। KF की वैल्यू हमें दी है 1.86 और डेल्टा TF की वैल्यू भी हमें दे रखी है ना? ओके, करेक्ट। सो डेल्टा TF इज गिवन टू अस एज 9.3। अमाउंट ऑफ आइस हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, राइट। So that is amount of ice means that we have to calculate over here WA. Okay. So 1.86 into 50 into 1000 upon MB, which is 62 into WA. So from here we can calculate the value of WA. WA हमारे पास आ जाता है 161.29 grams. आइस कितनी सेपरेट होगी? 200 ग्राम्स थी इथाइलिन ग्लाइकोल, तो कितनी आइस सेपरेट हो गई? दैट विल बी इक्वल टू 200 माइनस 161.29 which is equal to 38.71 grams. Okay, so we're moving on to the last question for today.
A solution of a non-volatile solute in water freezes at minus 0.30 degrees Celsius. The vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 20.35. Kf for water is 1.86. Calculate the vapor pressure of the solution at 298 Kelvin. Okay. तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है P नॉट 20 पॉइंट at the vapor pressure of pure water. यहाँ पे there is a certain this thing. This is 23.51. टाइपिंग एरर है 23.51. ठीक है. And K of water is this. Okay. So what is P naught given to us in the question? P naught is equal to 23.51. ये हमें दे रखा है. और डेल्टा टी एफ कितना हो गया? डेल्टा टी एफ दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0.30 तो 0.30 डिग्री सेल्सियस. What is the molar mass of the solvent? Ma is equal to 18. Now we know that P naught minus Ps upon P naught, that is equal to M of solute, that is Wb upon Mb, into Ma upon Wa. ठीक है. तो डेल्टा टी एफ क्या आ गया? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. ठीक है. सो मोलालिटी आपके पास क्या है? के एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA. ओके. अब P नॉट माइनस पी एस क्या है? यहाँ पे सेम हम लोगों ने वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था. तो ये आपके पास अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से एक और नई इक्वेशन आ जाएगी which is going to be P naught minus PS P naught minus PS upon PS, which is equal to delta TF into MA upon KF into 1000. ठीक है. और वी कैन से पी नॉट की वैल्यू हमको दी है 23.51 माइनस पी एस अपॉन पी एस दैट इज इक्वल टू 0.30 इंटू एम ए आ गया 18 अपॉन के एफ आ गया 1.86 in 2000. Right. So from this you can very easily calculate PS, which comes to 23.44 mm. तो देखो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. ओके. सो ये एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वाली क्लास में वी आर गोइंग टू गो ऑन टू ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. टिल दैट टाइम प्लीज कीप रिवाइजिंग. I shall see you soon.